units digit or the rightmost digit, last last digit, or anything if it is not a decimal number, then it is the last digit to the right side. If it is a decimal number, then the digit that is just before on the left of decimal, that is the units digit, or also kids call it ones digit. Okay, so this is about the units digit, and we start from very basic, and then the questions are of various levels. यूनिट डिजिट का एक क्वेश्चन मैं कल भी करूंगा बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रिमाइंडर, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर इन. ऑल राइट, so we know that 3 plus 5 is 8. So would it matter if before 3 there is 7 4, so the number is 743 and this is 895? Still the units digit of this addition would be 8. Okay. Now similarly, 5 minus 3 is 2. So how did it matter if it is 765 minus 293? The units digit will still be 2. 7 into 6 ends with 2. So if it is 127 into 936, still the units digit will be 2. The point is, all these three operations of mathematics, addition, subtraction, and multiplication, we do it from right to left. Division is the only one that we do from left to right, and we are seeking the rightmost digit. Therefore, these, as far as these three uh, arithmetic basic operations are concerned, the units digit जो है, it is made up of units digit only. जैसे कि unit digit of the result is based on unit digit of the constituents, the participants, जो operands हैं, operation में जो participate कर रहे हैं, उनके unit digit ही responsible हैं आपके result का unit digit बनाने के लिए. Okay, so I hope that works for you. तो what kind of questions can we expect? तो देखिए उस दिन factorial हमने किया था and we did one question on units digit, maybe if I remember correctly. So find the units digit of 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial plus say 1011 factorial. Okay. So you realize that we do not have to find the sum, we only have to find the units digit of the sum. Now understand that 5 factorial is the first one to end with a 0. Okay, if I write 0, I don't mean that I have cancelled 5 factorial for 0. Here in this segment, I will only write the units digit. I am only interested, concerned about the units digit of the number. So 5 factorial is 120, but the units digit is 0, so I have written only 0. तो अब 6 फैक्टोरियल जो है वो 5 फैक्टोरियल में ही 6 मल्टीप्लाई करके बनता है, 7 फैक्टोरियल उसी में कुछ मल्टीप्लाई करके बनता है. सो वंस यू गेट 0 एट द यूनिट्स प्लेस, देन नो मैटर व्हाट यू मल्टीप्लाई टू इट, वो हमेशा यूनिट्स डिजिट 0 ही रहेगा. तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सारे, इनका सबका यूनिट डिजिट 0 होगा? सो इट डज नॉट मैटर दैट फ्रॉम 5 फैक्टोरियल एंड आफ्टरवर्ड्स कहाँ तक जा रहे हैं, 1000 फैक्टोरियल तक जा रहे हैं या 10 फैक्टोरियल तक जा रहे हैं या 1 मिलियन फैक्टोरियल तक जा रहे हैं, they all will have unit digit as 0. तो हमारा क्वेश्चन छोटा होकर ये बन जाता है. So 4 factorial is 24. I'm only going to write 4. This is 6. 6 plus 4 again making 0. तो हमारा क्वेश्चन और छोटा होके बन गया 1 plus 2 actually. So the units digit of this is 3. तो यूनिट डिजिट का स्टार्ट तभी से हो गया था. ओके, नाउ हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि 16 to the power 20 to the power 24 to the power 28 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो क्वेश्चंस देखने में डराने वाले हैं. ओके, लेकिन ये इतने भयानक है नहीं, तो अब उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं. सो यू नो दैट वी हैव 10 digits with us. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. There are 10 digits available. We make any number using these, some of these 10 digits only. So
Out of these 10 digits, 0, 1, 5, 6, for this segment, 0, 1, 5 and 6, ये जो digits हैं, ये God's blessing है हमारे लिए, because इनके बारे में एक चीज है. So imagine there is a number ending with 0 or 1 or 5 or 6. You raise them to any integral powers, positive integral power. So 2, 5, 7, 93. What happens? Their unit digit does not change. समझ पा रहे हैं आप 15 का कोई भी पावर कर दीजिए, आखिरी में 5 ही आएगा. 96 का कोई भी पावर कर दीजिए, 96, 86, 76, 36, 16, जस्ट 6, उसका कोई भी पावर कर दीजिए. पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, मैंने ऐसे कोई भी पावर, आई मीन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, उसका यूनिट डिजिट आंसर का 6 ही रहने वाला है. 5 के केस में 5 रहेगा, 1 के केस में 1 रहेगा, 0 के केस में 0, एनीथिंग नंबर एंडिंग विद 0, उसका कोई भी पावर आप करते हैं तो एंड में जीरोज ही आएंगे. So that is why these become God's blessing for us. तो अच्छा ये बताइए फिर कि 15 to the power 60 plus 56 to the power 10 plus 60 to the power 15 plus 61 to the power 23. What will be the units digit of this operation? I think it's a cakewalk. This will remain 5, this will remain 6, this will remain 0, and this will remain 1. If you add them all, you are going to get 2 as your final answer. So, units digit of this operation will be 2. Okay. So, ये चारों का तो डिस्कशन हो गया. They are done really well. Okay. Next two are 4 and 9. 4 and 9. So अगर हम 4 की पावर्स देखें, 4 स्क्वायर, क्यूब, to the power 4, to the power 5, to the power 6, and so on. We are only concerned about the units digit, so we don't need the 3-digit, 4-digit numbers. If you see, there is a pattern that repeats. There is a cyclicity of the unit digit. Cyclicity is of 2. They have a cycle of 2. Unit digit has a cycle of 2. So can we say this was 4 to the power 1, this was 4 to the power 2. So every odd power of 4, every positive odd power of 4 will give us 4, and every even power will give us 6. Similarly, in case of 9, every odd power will give us 9, every even power will give us 1. Fine. So what I mean by this is, if you are given 44 to the power 99, the only thing that should matter to you should be, आपको सिर्फ क्या दिखना चाहिए कि 4 है यूनिट्स प्लेस पे और उसका पावर ऑड है, तो दैट विल एंड विथ 4. इसी तरह से 99 to the power 44 होता, so what you should see is यूनिट डिजिट पर 9 है और पावर इवन है. पावर इवन है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, इवन पावर तो 2 भी होती है ना, तो 9 स्क्वायर करके देख लीजिए, इट एंड्स विद 1, सो इवन पावर ऑफ 9 विल गिव यू 1. ऑलराइट, तो बहुत ही आसान आसान चीजें हैं ये. अब बताइए 49 to the power 94 minus
plus 94 to the power 49, what will be the units digit of this operation? Tell me. वेट कर रहा हूं मैं आपके कमेंट का. एज डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, अब थोड़ा स्पीड पकड़ना चाहिए आपको. आपको यहां दिखना चाहिए 9 का पावर इवन. कुछ लोग ये भी कर सकते हैं, इवन की जगह सीधे 2 लिख दें, 9 स्क्वायर. और 4 का पावर ऑड है तो 4 का पावर 1 लिख सकते हैं. तो 9 का पावर 2, 9 स्क्वायर दैट एंड्स विद 1. This is basically 1 and this is 4. So this is going to end with 5 or the units digit is going to be 5. Yes, so बिल्कुल बेसिक्स को कभी मत भूलिए, कॉमन सेंस को कभी टॉस पे ना जाने दीजिए, और हमेशा ये चीज़ें याद रखिए. ऑड इवन हो गया, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, पावर्स हो गए, यूनिट डिजिट हो गया, ये सब आपको सिर्फ इस चैप्टर तक हेल्प नहीं करते, उसके आगे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते. Okay, by the way, have you been asked to find the unit digit of 49 to the power 94 minus not 94 to the power 49? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीटेड लगता है, लेकिन फिर भी कई लोग इसका आंसर गलत दे देते हैं. तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि दिस विल एंड विद 1, दिस विल एंड विद 4. तो 1 माइनस 4 करके सीधे सच्चे तरीके से रजा साहब ने लिखा -3. रजा साहब एक बात बताइए, आपने कोई नंबर देखा है फलाना फलाना डिजिट्स का और आखिरी में -3 हो? ऐसा कोई नंबर देखा जिसका खाली आखिरी डिजिट -3 हो? तो कुछ तो पंगा यहाँ पर हुआ है. -5 का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि एक 1 है पॉजिटिव 1, एक -4 है, तो इनका सम -5 किस तरह होगा? आई थिंक यू आर ट्राइंग टू इग्नोर द नेगेटिव साइन, यू कैन नॉट. तो बहुत ही स्कूल लेवल बेसिक में इसका आंसर छुपा हुआ है. सो 49 टू द पावर 94, you know, it is a number, big number that ends with 1, and 94 to the power 49, it is also a big number that ends with 4. अब आप बताइए कि जब दो बड़े नंबर्स आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं और 1 में से 4 नहीं जाता, तो क्या आप -3 लिख देते हैं? यू बोरो 1 एंड मेक इट 11, राइट? 11 minus 4 is 7. So this way your answer should be 7. The unit digit should have been 7. Fine, fine by this. चलिए यहाँ तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया था. अब the last 4 digits remaining, इनमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. तो सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट, इसकी बात बाद में करेंगे, अबाउट 4 and its multiples. So all of you, do you remember by heart on your tips all the multiples of 4 up to 100? All the multiples of 4. मैं मतलब नंबर बोलूं और आप तुरंत पहचान जाएं कि ये 4 का मल्टीपल है या नहीं. Okay, so numbers like 92, okay, and 78 पहचान जाएंगे आप? 68, 52, 58. Can you recognize like immediately? बहुत सारे लोगों को सिर्फ 4 का टेबल रटा होता है 40 तक, और उसके बाद पॉपुलर नंबर्स पता होते हैं, जैसे 60 इज डिविजिबल बाय 4, 80 इज डिविजिबल बाय 4, 88 इज डिविजिबल बाय 4, 100 इज डिविजिबल बाय 4. लेकिन ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं, इसमें वो रुक जाते हैं. दे वांट टू प्ले सेफ एंड दे वांट टू एक्चुअली. तो इसमें मैं कुछ आपको टेक्निक्स बताना चाहता हूँ कि कैसे पता लगाएं कि ये 4 से, तुरंत कैसे पता लगाएं कि ये 4 से डिविजिबल विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग. और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है
तो कितना रिमाइंडर दे रहा है? नहीं डिवाइड हो रहा है मतलब रिमाइंडर देगा, वन रिमाइंडर देगा या टू या थ्री। थ्री को आप -1 भी बोल सकते हैं। ओके, सो उसके देखिए वैसे तो बहुत ही छोटे लेवल की बात है, लेकिन कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती। अब किसी को अगर नहीं ये चीज़ पता है तो उसको हेल्प चाहिए। तो देखिए, one thing is, so suppose I took a number, say 98। तो बहुत सारे लोगों को पता है कि 98 डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 100 डिविजिबल है। तो 100 से 4 कम होना चाहिए, 2 कम में कैसे होगा? बट सपोज लेट्स जस्ट टेक दिस एग्जांपल। तो 98 आपको नहीं मालूम है, तो फ्रॉम एनी नंबर you can subtract a substantially large multiple of 4 that you remember। जैसे 80 तो पता है ना आपको, 88 भी पता है, 88 माइनस कर दो तो आएगा 10। अब 10 तो पहचान जाओगे भाई, 10 4 के टेबल में आता है कि नहीं? नहीं आता है। और इतना ही नहीं, कितना रिमाइंडर देगा वो भी आपको पता है, 2 रिमाइंडर देगा। ओके, तो सपोज आई गिव यू 77। 77 में से और कुछ नहीं तो 60 माइनस कर दो, 64 माइनस कर दो, आपको मिलेगा 17। 17 तो पहचान जाओगे, इट इज 16 प्लस 1, सो इट विल गिव यू 1 रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड बाय 4। सो द आइडिया इज, मैं इस सेगमेंट की शुरुआत ही सिर्फ तब कर पाऊंगा जब आप इस बारे में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे कि कोई भी 2 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर देगा। ओके, तो जैसे 58 है, तो 58 को कैसे पहचाना जाए? उसमें से 48 माइनस कर दो, 48 तो 4 के टेबल में आता है ना, सो फिर 10 यही वाली बात हो गई है, तो इट विल गिव यू 2 रिमाइंडर। ओके, another thing is, you know, in the first column 1 to 10 there are two multiples of 4। In the next column there are three multiples। हमेशा ऐसे ही चलेगा, एक में 2, दूसरे में 3, बगल में 2, फिर उसके बगल में 3, फिर उसके राइट में 2, फिर उसके राइट में 3, ऐसे 2 3 2 3 मल्टीपल्स कॉलम वाइज चलेंगे। तो जैसे अगर मैंने आपसे 58 पूछा, तो अगर आपको 58 नहीं पता है तो 48 तो पता है। अगर 48 डिवाइड होता है तो 58 नहीं होगा, और 58 नहीं होता है तो 68 होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट इवन नंबर। 68 होता है तो 78 नहीं होगा, 78 नहीं होता है तो 88 होगा। तो आप कोई ना कोई जरूर पहचान जाएंगे। ये वही बात है कि if you add 20 to a multiple of 4 it will remain a multiple of 4। if you add 20 to a number which is not a multiple of 4 it will still not be a multiple of 4, it will keep giving you the same remainder as originally it was। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। another thing, हमने 4 के डिविजिबिलिटी रूल में ये सीखा था कि if 28 is divisible by 4 which it is, तो उसके पहले आप क्या लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। if it is a 4 digit number, 6 digit number, 100 digit number, 9 digit number, does not matter। when 28 is the last two digits, then the entire number will be divisible by 4। ओके, इसी तरह से 99 आपको मालूम है कि 4 से डिवाइड नहीं होता है, ये रिमाइंडर 3 देता है व्हेन यू डिवाइड बाय 4। सो 99 के पहले आप कुछ भी लिख लीजिए, this entire 6 digit number will also give you the remainder of 3 only when you divide it by 4। ओके, तो अगर बात 4 से डिवाइड करने की या 4 से रिमाइंडर निकालने की है, सो ऑल दैट मैटर्स इज द लास्ट टू डिजिट्स। अभी तक की बोली हुई सारी बातें आपको ठीक है, ओके हैं? अब मैं मेन मुद्दे पर आऊं। ओके, तो अगर हम 2 की पावर्स देखें, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, and then I remove all the other digits except the units digit, then you would realize again there is a pattern, right? There is a pattern। ये तो नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। There is a pattern of group of 4 digits, 2486, then again 2486, then again 2486, then again 2486। So
the cyclicity of 4. That is why 4 was so important. साइकिल इनकी 4 की होती है, तो 2486 2486 2486 2486 2486, ऐसा ही केस 3 के पावर्स में भी होता है, 7 के पावर्स में भी होता है, और 8 के पावर्स में भी होता है. बट राइट नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन 2 टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बेटर. तो मान लीजिए आपसे पूछा है 2 टू द पावर 97 का यूनिट्स डिजिट क्या होगा. तो सबसे पहले आप क्या नोटिस करेंगे, भाई 2 है, एंड देन यू विल रिमाइंड योरसेल्फ दैट 2 का तो साइकिल 4 4 में चलता है यूनिट डिजिट का. देन यू विल रिमाइंड योरसेल्फ दैट this is 2 to the power 4, 2 to the power 8, 2 to the power 12. तो पावर जब 4 होगी, 8 होगी, 12 होगी, तो हमेशा आपको यूनिट्स प्लेस पर 6 मिलेगा. फाइन है कि नहीं? तो आप हमेशा ये याद रखें. तो अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि पावर 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर पावर 4 से डिवाइड हो रहा है तो आप सीधे बोलोगे 6 विल बी द यूनिट डिजिट, लेकिन यहाँ वो नहीं डिवाइड हो रहा है. तो व्हाट कैटेगरी इट इज. अच्छा, इसका नियरेस्ट बताओ. 100, 100 तो पता है ना आपको. सो यू विल से 2 to the power 100 will give me 6. Then 99, 98, 97. So 2 to the power 97 will give me this. You could also have seen it like this, that 2 to the power 96 will give me 6. Then 2 to the power 97 will give me 2. ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये साइकिल है. ये तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाओ, क्लॉकवाइज जाओ, अगर आपकी काउंटिंग सही है तो आप सही जगह पहुंचेंगे. यू गॉट दिस. हम 4 4 की साइकिल में देख रहे हैं, क्योंकि 4 4 का साइकिल है, वो हमने नहीं बनाया, वो अपने आप है, ऐसा हो रहा है. अब यही बताइए, यही 792 टू द पावर 297 होता, वुड इट बी एनी डिफरेंट? नो, आई डोंट थिंक इट वुड बी, क्योंकि आपके लिए ये 2 टू द पावर 97 ही है, दिस एंटायर थिंग. है कि नहीं? भाई यूनिट डिजिट से आपको मतलब वो 2 है, एंड एज फार एज द पावर इज कंसर्न ओनली द लास्ट 2 डिजिट्स मैटर. ओनली द लास्ट 2 डिजिट्स मैटर. तो ये क्वेश्चन भी वही है, 2 टू द पावर 97. ठीक है कि नहीं? अभी तक की बात में कहीं कोई भी डाउट हो तो बताइए. मैं और एग्जांपल्स लूंगा, उसकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि थ्योरी खत्म होने वाली है. इसके बाद हमें क्वेश्चंस पे जाना है, क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको बेहतर समझेंगे. और लेकिन उसके पहले आई वांट टू टेक अपनी लेवल पर जितना मुझे लगता है सही, उतने एग्जांपल्स में तो लूंगा ही. एनी प्रॉब्लम इन दिस? ओके, अच्छा, तो फ्रेश एग्जांपल लेते हैं. सो 122 टू द पावर 122, अब इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछ रहा है. ओके, तो आप इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे क्वेश्चन को. सबसे पहले तो फॉर यू दिस इज जस्ट 2 टू द पावर 22. अब आप एक काम कर सकते हैं, या तो आपको आप इसमें पावर में से 20 माइनस कर दो. एनी मल्टीपल ऑफ 4 यू कैन सब्ट्रैक्ट. एनी मल्टीपल ऑफ 4 यू वांट टू सब्ट्रैक्ट, जस्ट 4, 8, 12, जो आप कंफर्टेबल हो वो माइनस कर दीजिए. तो मैं 20 में कंफर्टेबल हूँ, 20 तो पता ही है कि 4 का मल्टीपल होता है. तो ये आपको वही रिजल्ट देगा जो 22 माइनस 20 यानी कि 2 स्क्वायर देगा, यानी कि यूनिट डिजिट विल बी 4. ओके, आप एक और काम कर सकते थे, जैसे 2 का तो चलो आपको मालूम है, बाकियों का नहीं मालूम, तो आप पहले ही तैयार कर लेते 2 4 8 6, एंड यू वुड हैव सेड दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 2 टू द पावर 1, दिस इज 2 क्यूब, एंड दिस इज व्हाट 2 टू द पावर 4 विल गिव. तो जैसे ही आपको पता 2 स्क्वायर आ रहा है तो आपने 4 उठा के लिख दिया. ओके, ओके, एक नया ट्राई करते हैं. सो
73 to the power 186। सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, 3 है तो सबसे पहले अपना रॉ मटेरियल तैयार कर लीजिए। 3 आपको रटने की जरूरत नहीं है, यू कैन मेक इट लाइक दिस। अच्छा, 3 का भी साइक्लिसिटी 4 होगा, लेट्स सी हाउ। सो 3 to the power 1 एवरीबडी नोज, 3 स्क्वायर आएगा इसमें 3 मल्टीप्लाई करके, वैसे तो पता होता है लोगों को। 9 into 3 7, 7 into 3 1। जैसे ही 1 आ गया तो अब तो साइकिल रिपीट होनी ही है, क्योंकि आप इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे फिर वापस 3 बन जाएगा। सो आई थिंक वी आर there with this cyclicity of 4 for the powers of 3. So this is 3 to the power 1, this is 3 square, obviously this is 3 cube, and this is 3 to the power 4। अच्छा, अब आप क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। आप सबसे पहले इसे लिखेंगे 3 to the power 86। पावर में सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स मैटर करती हैं, और नीचे वाले नंबर में तो सिर्फ यूनिट डिजिट ही मैटर करता है। 3 to the power 86, इसमें से 80 माइनस कर दीजिए, जस्ट 3 to the power 6 बचेगा। इसको भी आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फाइनली द यूनिट्स डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 9। सही है। अच्छा, तो फिर आप ये समझे कि 3 का मैंने जो टेबल था, साइकिल था, वो कैसे ऑन द स्पॉट बनाया। ये याद करने वाली चीज नहीं है। कई लोग याद भी करते हैं, दैट इज ओके। लेकिन अगर आप याद नहीं करना चाहते तो बेस्ट थिंग इज दैट आप ऑन द स्पॉट बना सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कोई टाइम नहीं वेस्ट होता है इसमें। जैसे मान लीजिए 87 to the power 78 आ गया, तो सबसे पहले आपने देखा यूनिट प्लेस पे 7 है, तो 7 का समान तैयार कर लीजिए। 7 into 7 into 7 into 7, 7931 के आते ही उसके बाद फिर से साइकिल रिपीट होगी। 7931 7931 7931। ठीक है, तो ये आपका तैयारी हो गया। अब आप क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करिए। ये आपका हुआ 7 to the power 78। अब आपके पास चॉइसेस, या तो आप 78 को अपने मन में डिवाइड करो 4 से और रिमाइंडर निकालो। लेकिन अगर ये आपके लिए लंबा प्रोसेस है तो आप वही करिए जो मैंने आपको बताया। पावर में से 4 का मल्टीपल माइनस कर दो, 40 48 कुछ भी माइनस। तो मान लो आपने 48 माइनस किया, तो यू आर लेफ्ट विथ 38। अब 38 व्हाट टाइप, 38 में से भी 36 माइनस कर सकते हो, तो ये बन गया 2। 7 स्क्वायर क्या होता है, 9। सो दिस नंबर विल एंड विथ 9 अगेन। बताइए फिर 77 to the power 77 प्लस 88 to the power 33, इस पूरे का यूनिट डिजिट क्या होगा। जल्दबाजी में गलती मत करना, मन आपका करेगा कि तुरंत कर दें, लेकिन मन में वो फ्लो चार्ट रिपीट करिए। जब वो बहुत कंफर्टेबली सेट हो जाए आपके दिमाग में, तो आप जल्दबाजी कर सकते। 5, ओके। So this is 7 to the power 76, oh sorry 77, and this is 8 to the power 33। 77 में से आप 76 तक माइनस कर सकते हैं, तो ये सिर्फ 7 बचेगा। और इसी तरह से इसमें पावर में से 32 माइनस कर सकते हैं, तो ये 1 बचेगा। 7 to the power 1 प्लस 8 to the power 1 is something ending with 5। फाइन बाय यू। चलिए तो फिर find the unit digit of this big number। बहुत ही पोपट करने वाला क्वेश्चन है, बेवकूफ बनाने वाला। जैसे ही आप इसका कैच कर लेंगे, तो इसका ट्रैप है, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा शायद कि मैंने क्यों ऐसे बोला। देखिए, कभी भी मल्टीप्लिकेशन आए तो आपकी नजरें सबसे पहले 5 ढूंढें, क्योंकि अगर 5 मिल गया पिक्चर में तो फिर आपकी आधी से ज्यादा टेंशन खत्म। अब आपका आंसर 5 होगा या 0 होगा, क्योंकि खुद ही सोचिए, 5 के टेबल में ही देख लो,
किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 या 0 के अलावा कुछ और होता है? दैट मीन्स नो मैटर व्हाट यू मल्टीप्लाई विद 5, योर यूनिट डिजिट इज गोइंग टू बी 5 और 0। ओके, तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ बीच में कहीं 15 टू द पावर 15 है, तो 5 तो आपका कंफर्म हो गया। अब आपको मालूम है कि 5 में अगर एक भी कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई हो गया तो वो 0 बनाएगा, और एक बार अगर यूनिट प्लेस पर 0 बन गया एंड यू कीप मल्टीप्लाइंग एनीथिंग टू इट, इट विल रिमेन 0, द यूनिट प्लेस विल रिमेन 0। तो यहाँ पर तो भाई इवन नंबर्स की कोई कमी नहीं है, एवरी ऑल्टरनेट नंबर इज एन इवन नंबर, सो योर आंसर वुड बी 0 यूनिट डिजिट, 0 यूनिट्स प्लेस। वैसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस पर यह बनेगा कि कितने जीरोस होंगे। लास्ट डिजिट 0 होगा ऑफ कोर्स, लेकिन कितने जीरोस होंगे। जी बताइए। दो लोगों ने सिर्फ आंसर दिया, तो ऐसा क्या हो गया इसमें? व्हाट इज हैपनिंग विद द अदर पीपल? देखिए, हम ये बस ये बात कर चुके हैं कि जो जीरोस होते हैं वो 5 से बनते हैं। जितने 5 होंगे उतने जीरोस होंगे। आई मीन ऑब्वियसली उतने टूज भी होने चाहिए, तो टू की तो देखिए यहाँ कोई कमी नहीं है, 5 ही पहले एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सो 15 is 5 into 3, every 15 has a 5 and a 3. If there is 15 power of 15, then there are going to be 15 fives. This implies 15 fives, which implies 15 zeros. Have you got this? 15 zeros होंगे इस नंबर के एंड में। ओके, अच्छा बेहतर क्वेश्चन होता अगर हम इनको ऐड करवाते, 11 की पावर 11 प्लस 12 की पावर 12, तो थोड़ा लंबा पड़ता, लेकिन प्रैक्टिस होती। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ऐसे भी हो जाएगी। आई एम मूविंग टू द क्वेश्चंस नाउ। ओके, आसान क्वेश्चन है, आई होप इट इज विजिबल। यस, 1, everybody gets 1. This is 3 to the power 24. It is as good as 3 to the power 4, which ends with 1. Okay, case closed. Okay, this one. Okay, so it's basically 2 to the power 10 into 6. Shall I write the power? What is the need? 7 to the power 12 and 8 to the power 13. Can it be transformed into 2 to the power 2 into 6 into 7 to the power 4 into 8 to the power 1? तो ये बनेगा 4, ये तो 6 है ही, 7 की पावर 4 1 में एंड होता है, और ये तो 8 है। 6 into 8 is 8, 8 into 4 finally 2। यूनिट्स प्लेस पर 2 आएगा। वैसे देखिए, क्वेश्चन तो हो गया है, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू एक स्पेशल बात है अबाउट मल्टीप्लाइंग बाय 6। So 6 when multiplied by an even number. Okay, 6 into 2, 6 into 4, 6 into 6, 6 into 8, 6 into 0. आई थिंक आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर 6 को आप किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आप करो ना करो एक ही बात है, वो वही इवन डिजिट बन जाता है। 6 इंटू 2 बिकम्स 2, 6 इंटू 4 बिकम्स 4, 6 इंटू 8 बिकम्स 8। तो 6 जब आपने यहाँ पर देखा और देखा कि दूसरे इवन नंबर्स भी हैं, तो आप 6 को भूल भी जाते तो चलेगा। फाइन, फाइन बाय दिस। चलिए, फाइंड द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट्स नहीं होगा, डिजिट होगा एल।
करेक्ट इट। अगर आप ध्यान से देखें तो इनके पूछने का तरीका दूसरा है, लेकिन ये पूछ एक तरह से यूनिट डिजिट ही रहे हैं। 3 का यूनिट डिजिट, नॉट 30 का। सो राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, व्हाट दे मीन इज 30 टू द पावर 2720 को आप लिख सकते हैं 3 to the power 2720 इंटू 10 to the power 2720। अब ये जो 10 to the power ये फलाना है, this will be responsible for so many zeros in the end, 2720 zeros in the end। लेकिन वो zeros को हटा दें तो आखिरी डिजिट क्या होगा, the right most non zero digit। so right में right most there are 2720 zeros। what is before that, immediately before that, whatever be the unit digit of this, वही आपका आंसर होगा। तो ये तो ट्रांसफॉर्म होकर 3 की पावर 4 बन जाएगा, यानी कि 1। द आंसर बिकम्स 1। who did not understand, what do you not understand, please let me know। अच्छा, तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा स्टार्ट करें, तो 6007 तो नहीं मालूम, बट हम 6000 टू द पावर 3 की बात कर सकते हैं, 7000 टू द पावर 3 की बात कर सकते हैं। टू स्टार्ट विथ दिस विल बी 216 followed by 9 zeros। Similarly this is 343 followed by 9 zeros। So basically they both are 12 digit numbers। Fine। 6000 का क्यूब इज अ 12 डिजिट नंबर। अगर मैं सिर्फ ये बोलकर छोड़ देता तो कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी होती कि भाई 6007 का क्यूब अगर 12 डिजिट से ज्यादा का हो गया तो, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी इनसिक्योरिटी तो इनसिक्योरिटी है। इसलिए मैंने 7000 का भी क्यूब लेकर देखा और वो भी 12 डिजिट का नंबर आया। तो 6007 का क्यूब कैसे 13 डिजिट का हो जाएगा? So 6000 का cube is a 12 digit number। 6007 cube this way is supposed to be, is guaranteed a 12 digit number। Okay। अब सोचिए कि 12 डिजिट का नंबर है। ओके, 12 डिजिट का नंबर है, आपसे 12th डिजिट पूछ रहे हैं, यानी कि इन अ वे यूनिट्स डिजिट ही तो पूछ रहे हैं। तो अभी तक हमने इतने क्वेश्चंस देखे, सब में शब्द बदल बदल कर, किसी तरह घुमा फिरा कर, कुल मिलाकर यूनिट डिजिट ही पूछी है अलग अलग तरीकों से। अभी भी आपसे यूनिट डिजिट पूछ रहे हैं। सो दिस एंटायर क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म्स इनटू 7 क्यूब, एंड यू नो 7 क्यूब एंड्स विद अ 3। ऑप्शन 4 नंबर 3। फाइन, चलिए और देखते हैं। इससे भी एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको देखने मिलेगा। Okay, so the deal is fifth power of any digit is as good as first power। देखिए, 2 to the power 5, 3 to the power 5, 7 to the power 5, 8 to the power 5। जैसा कि मैंने आपको बोला है, 4 4 माइनस कर दो तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 2 3 7 8 ओनली। फिर आए 0 1 5 6, इनकी तो आप कोई भी पावर कर दीजिए, 5 की क्या बात है, दे विल रिमेन 0 1 5 6। फिर बचे 4 और 9, इनका 5 पावर करोगे सो दे विल बिहेव एज 4 की पावर ऑड नंबर एंड 9 की पावर ऑड नंबर, तो वो भी 4 की पावर 1 9 की पावर 1 बन जाएंगे। सो एक्चुअली यू कैन क्विकली ट्रांसफॉर्म द क्वेश्चन इनटू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 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 99। ओके, नाउ अब इसको डील करने के देखिए कितने सारे तरीके हैं। पॉइंट नंबर 1, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, सबसे पहले आपको ये समझना होगा।
Are there 99 numbers, 49 numbers, 51 numbers और 50 numbers? पहले तो ये सोचिए। उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, अगर इनके नीचे आप इनका नेक्स्ट नंबर लिख दें 2 4 6 8 करते करते 100, so that will make like a table of 2, है ना? तो टेबल ऑफ 2 में 100 कहाँ आता है? 50 टाइम्स। तो दैट मीन्स देयर आर 50 नंबर्स। सो ऊपर भी 50 नंबर्स हैं, तो इस तरह से पता चलता है देयर आर 50 नंबर्स। ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 3 5 एवरी ऑड नंबर इज रिटन लाइक 2n-1। एन को 1 रखेंगे तो पहला ऑड नंबर मिलेगा, 2 रखेंगे तो दूसरा ऑड नंबर मिलेगा। तो 99 कब मिलेगा? एन को 50 रखने पर। यानी कि दिस वे ऑल्सो देयर आर 50 नंबर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू indicate here is, देखिए एक एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कभी भी आपको एक एपी जोड़ना हो तो आप हमेशा पहले और आखिरी नंबर को जोड़िए, आपको मिलता है 100। 100 इंटू नंबर ऑफ पेयर्स, है ना? अब नंबर ऑफ पेयर्स के लिए अगर आपको नहीं पता होता, गलती से आप 99 नंबर्स भी ले लेते या 49 भी ले लेते, तो भी आपका आंसर नहीं बदलता। बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई एनीथिंग बाय 100, नंबर ऑफ पेयर्स चाहे 25 हो या 25 या 50 और 49/2 हो, आपका यूनिट डिजिट तो जीरो ही रहने वाला है। तो एक तो तरीका ये हो गया। सो बाय द वे, दिस इज 100 इंटू कितने पेयर्स हैं? 50 पेयर। तो ये हो गया। Oh, sorry, 25 pairs. I'm sorry, 25 pairs. 50 तो numbers है। Okay. Secondly, आपको मालूम होना चाहिए कि starting from 1, if you are adding odd numbers, right? So sum of n odd numbers starting from 1 is always equal to n square. So there are 50 odd numbers, so sum definitely becomes 50 square. कुछ करना ही नहीं है, 50 square हो गया तो it ends with 2 zeros, 2500। ठीक है, सेकंड बात ये हो गई। थर्ड बात जो है, हम पहले खाली इसको देखते हैं। सो 9 and 1 एड अप टू मेक अ 0, 7 and 3 एड अप टू मेक अ 0, बीच में बचा 5। तो ऐसे जितने ग्रुप्स बनेंगे उतनी बार 5 आएगा। अब ग्रुप्स कितने हैं? सिंगल डिजिट नंबर्स, देन 11s, देन 20s, देन 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s। देयर आर 10 ग्रुप्स। सो 10 ग्रुप्स हैं तो 5 इंटू 10 हो जाएगा। सो यूनिट डिजिट जीरो ही बनेगा, है कि नहीं? सो यूनिट डिजिट इस तरह से आप कई तरह से निकाल सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। जिन लोगों का गलत आ रहा था, 5 या 4 या 3 आ रहा था, यू अंडरस्टैंड दिस? आई होप यू डू। आई होप दिस इज विजिबल क्लियरली टू यू। ये 8100 टू द पावर n/2 है, n/2। व्हाट डू वी गेट? ये थोड़ा बेहतर लेवल क्वेश्चन है। Sunil Sharma, Vishwajit and Pooja are saying 2, Kashish is saying 4. Am I right? Are you speaking about the same question, current question? So let me start. We can write 8100 to the power 1/2 whole to the power n। 840 को वैसे ही लिखा रहने देते हैं। 125000 to the power 1/3 whole to the power n plus 256 tetra 0 to the power 1/4 whole to the power n. By writing this, did I change anything in the given expression? Did I change even a single bit? I think not. I hope not. कुछ भी चेंज नहीं किया। अब देखिए, इससे हमारा क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदल जाएगा।
8100 का स्क्वायर रूट 90, ये है 840, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा कितना 40 अगेन। ओके, सो राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। अब देखिए, क्योंकि हर नंबर में एक जीरो है और पावर n है, सो दिस इज अ नंबर एंडिंग विद n zeros. You agree with this? This is a number ending with n zeros. I hope यहां तक फाइन है। ओके, देन n is odd। अब आप क्या कर सकते हो, n की वैल्यू ही ले लो। वैसे अगर मैं जीरोस को छोड़ दूं, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर एंडिंग विद n zeros, so I can actually take 10 to the power n common, then it becomes 9 to the power odd, n is odd, 4 to the power odd, 5 to the power odd, and 4 to the power odd. So they will actually become 9 4 5 4। बस इनको आपको ऐड करना है जीरोस को छोड़ के। दिस इनसाइड द ब्रैकेट is a number that ends with 2. So I think 2 is going to be the rightmost non-zero digit। rightmost digit तो जीरो ही होगी, बहुत सारे जीरोस होंगे, n नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जो भी n होता है हमारा। फाइन बाय दिस। नेक्स्ट चले, ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आसान है फिर भी अच्छा है। पहले मैंने जो 6 के बारे में आपसे एक बात कही थी, वो यहाँ पर रेडिली यूज हो जाएगी अगर आप चाहें तो, नहीं चाहें तो भी काम बन जाएगा। क्वेश्चन कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एनीवे, 9 into 4 is 6 and 6 into 6 is 6। तो ये पूरी चीज जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 34 to the power p into 6। और 6 के बारे में हमने अभी क्या सीखा था, इफ यू मल्टीप्लाई 6 with an even number, the even number itself is going to be the unit digit। So the units digit of this number can be 4 or can be 6, which implies p has to be odd and even। अब ये कह रहे हैं कि यूनिट डिजिट भी p होना चाहिए। तो भाई अगर p odd होगा तो यूनिट डिजिट तो 4 और 6 में से ही आने वाला है। दैट मीन्स odd is not possible। if odd is not possible then 4 is not possible। तो फिर यूनिट डिजिट का 6 आना कंफर्म है, और यूनिक 6 ओनली। So that means there is only one unit digit possible, so there is only one value of p possible, so it becomes 1। मुझे लगता है कि इसमें एक ऑप्शन 6 भी बनाना चाहिए था। कुछ लोग कंफ्यूज होते और 6 मार्क करते, सही होने के बावजूद वो गलत ऑप्शन मार्क करते। इस तरह की कनिंग टैक्टिक्स करने में कैट का कोई जवाब नहीं है। p का वैल्यू 6, राइट। तो मुझे मेरे हिसाब से एक ऑप्शन 2 भी होना चाहिए था, एक ऑप्शन 4 भी होना चाहिए था और एक ऑप्शन 6 भी होना चाहिए था। तो लोगों को लगता कि p तो इवन होगा, तो 1 को सबसे पहले डिस्कार्ड कर देते। कुछ लोग इस तरह की गलतियां करते हैं अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड नर्वसनेस। ओके, इसके बाद ये क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं, इसका आंसर तो हमेशा के लिए बैज कर दिया गया है एज 3। ओके, सो दैट इज इट अबाउट यूनिट डिजिट फ्रॉम माय साइड। अब जो मुझे शुरू करना है, और इसको हम कल आगे बढ़ाएंगे, डिवीजन। ओके, डिवीजन के बारे में क्या नहीं समझ आया, सॉरी बताइए, विच पार्ट? जो मैं बोल रहा था कि ऑप्शंस बदल देने चाहिए, वो या उसके पहले ही? कशिश, मेरे ख्याल से आप उसी बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं जिसके ऊपर मैं ऑप्शन बदलने की बात कह रहा था। आपको पी का वैल्यू नहीं पूछा है, पी कितने वैरायटी में हो सकते हैं ये पूछा है। यू हैव टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी आर पॉसिबल। आपको पी की वैल्यू उठा उठा के ऑप्शन में से नहीं रखना था। दैट इज नॉट व्हाट ऑप्शन सेज। पूजा इज सेइंग कैट इज विलन्स ऑफ चिल्ड्रंस जॉय। सबसे पहले तो अब आप लोग चिल्ड्रन नहीं रहे,
हाँ, मन के अंदर एक बच्चा रखना चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन अब हम बच्चे नहीं रहे। दूसरी बात तो ये है कि नजरिया है आप कैट को विलन की तरह देखें क्योंकि वो आपके सिलेक्शन के आड़े आ रहा है, लेकिन ये भी तो देखिए कि इट इज एक्चुअली टेस्टिंग यू टू बिकम द एंड प्रोडक्ट जो मार्केट में जाएगा, पॉलिसीज बनाएगा, कल को ब्रांड मैनेजर बनेगा, सीएफओ बनेगा किसी कंपनी का सीओओ बनेगा। तो उस लेवल पर मार्केट में कितनी सारी प्रैक्टिसेस हैं जो बेवकूफ बनाने के लिए तैयार खड़ी हैं। तो अगर हमारा दिमाग उस तरह से चल रहा है तो वो अभी से ऐसा चलना शुरू हो जाएगा। राइट, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की जो फितरत होती है वो ऐसा नहीं है कि उसके सिर्फ काम में है, वो उसके डे टू डे लाइफ में भी दिखती है। जैसे हम कुछ फ्रेंड्स लूडो खेला करते थे लॉकडाउन के ज़माने में, रात में सोने से पहले अलग अलग फ़ोन पे, आपको पता होगा दैट एंटायर ड्रिल। तो उसमें से एक हमारा दोस्त था जो किसी का टोकन काटने की परवाह नहीं करता था। वो सिर्फ ये देखता था कि वो सेफ हो जाए, उसका टोकन सेफ हाउस में पहुंच जाए, स्टार पे पहुंच जाए या होम में पहुंच जाए। तो क्योंकि हम उसे जानते हैं, हम उस दोस्त को, तो रियल लाइफ में भी उसकी जो फितरत है वो ऐसी ही है, वो बहुत सेफ प्ले करना चाहता है। ही वुड नेवर वांट टू टेक एनी रिस्क, ही वुड नॉट इन्वेस्ट हिज मनी इन शेयर मार्केट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही है या गलत है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि फितरत जो होती है इंसान की, वो उसके रियल लाइफ, डे टू डे लाइफ में भी झलकना शुरू हो जाती है। ओके, तो इसीलिए कैट के एग्जाम में अगर आपको ये टेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि अगर आप अभी से, आपका वो एटीट्यूड है कि यू आर अवेयर अबाउट व्हाट प्रैक्टिसेस, मैल प्रैक्टिसेस आर गोइंग ऑन, हाउ यू कुड बी ट्रैप्ड, तो आप प्रोफेशनल लाइफ में भी संभवतः वैसे ही बिहेव करेंगे। और अगर आप ट्रैप हो जाते हैं तो चांसेस आर कि आप जल्दी से गलतियों से नहीं सीख रहे हैं, तो आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो कई सारे लोग पूछते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमसे क्यों पूछा जाता है, यूनिट डिजिट हमसे क्यों पूछा जाता है, हमें ये थोड़ी करना है आगे जाके। सो यू आर रॉन्ग बाय जजिंग कैट और एनी एग्जाम लाइक दैट। दे आर एक्चुअली टेस्टिंग दोज स्किल्स इन यू, कि वो स्किल, आपको एक सेट ऑफ रूल्स दिए गए, रूल्स तो आपको समझ में आ गए, लेकिन क्या आप वो ट्रैप से बच पा रहे हैं कि नहीं। ओके, चलिए। सो डिवीजन, कशिश अभी समझ में आया कि नहीं आया? इसके बीच में काफी सारी बातें भी हो गई, अभी आपको समझ में आया? सिक्स, 4 6 एक बार फिर से बता दो। अच्छा, ब्रैकेट में जब हम 9 की पावर ऑड, 4 की पावर ऑड, अप टू दिस स्टेप, दिस वाज ओके फॉर यू गाइस? ये तो ठीक था ना? और फिर हम ऑड से कैसे पावर हटा के सिर्फ 9454 पे लेकर आ गए, यहां तक ओके है। थोड़ा लैग है तो आपके कमेंट्स मेरे तक पहुंचने में। अच्छा, यही नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, यहां से दोबारा लेते हैं। अच्छा, आप ये तो समझ गए हैं ना कि जीरोस को अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन हमसे राइट मोस्ट नॉन जीरो पूछ रहा है, क्योंकि हर नंबर में, हर टर्म में सेम नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो मैं जीरो को अवॉइड कर रहा हूँ। ये नहीं, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। अच्छा हाँ, ये वाला, आई एम सॉरी, दिस वन, राइट राइट। हाँ, इसमें ऑड इवन, हाँ, ये ब्रैकेट के अंदर 34 का पावर पी इंटू 6 बन गया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो हमें जो डिजिट्स अवेलेबल थे उनको मल्टीप्लाई करके हमने उनको 6 बनाकर छोड़ दिया। 6 के बारे में हमने सुना है, समझा है कि व्हेन 6 इज मल्टीप्लाइड बाय एन इवन नंबर देन 6 डज नॉट मैटर, whatever even number will make its final digit, unit digit, that will be the final answer। तो 34 की पावर p ही है जो है, अब इसका यूनिट डिजिट जो होगा वही फाइनल यूनिट डिजिट होगा हमारे नंबर का, 6 से मल्टीप्लाई करो या ना करो। तो अब क्योंकि 34 है, यूनिट डिजिट 4 है, तो खाली दो ही यूनिट डिजिट हो सकते हैं, या तो 4 या 6। 4 की पावर करने पर 4 यूनिट डिजिट आता है अगर पावर ऑड हो। ओके, सो इफ यू वांटेड 4 एज द यूनिट्स डिजिट देन p शुड हैव बीन 13579 टाइप। लेकिन ये तो साहब कह रहे हैं क्वेश्चन में कि यूनिट डिजिट भी p है। अब आपको पता है कि यूनिट डिजिट 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि p को ऑड लेना है, तो ये दोनों बातें कैसे होंगी? तो p को आप एक तरफ 135 लेंगे तो वो 4 और 6 कैसे बनेगा? तो इस बेसिस पर, इनकंसिस्टेंसी की वजह से ऑड को हटाना पड़ा। ऑड को हटाना पड़ा तो 4 को हटाना पड़ा, क्योंकि जब तक p ऑड नहीं होगा, क्योंकि p इज इन द पावर, तब तक यूनिट डिजिट 4 कैसे आएगा, और ऑड वो हो नहीं सकता।
तो फिर हमें ले देकर इस पर आना पड़ा कि पी को इवन रखना होगा और तब जाकर यूनिट डिजिट 6 बनेगा। अब क्योंकि यूनिट डिजिट को भी पी बनना है तो फिर पी की एक ही वैल्यू है, दैट इज 6। हाँ, वो साइड एरो वाला बटन मेरे से 2 बार दब गया था तो 2 क्वेश्चन पीछे चला। ओके, आई होप नाउ इट इज बेटर फॉर यू। ओके, अबाउट डिवीजन। तो डिवीजन के बारे में कुछ चीजें हमें समझने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले आई एम टेकिंग अ डिवीजन रैंडम 100, लेट अस से 100 इज टू बी डिवाइडेड बाय 7। तो अब सबसे पहले तो नॉमेनक्लेचर, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर, दिस इज कॉल्ड quotient, and this is called remainder। हमारी अभी तक की एकेडमिक लाइफ में हम हमेशा डिवीजन का सिनोनिम क्वोशंट समझते रहे। वी वुड से आंसर, व्हेन वी गॉट क्वोशंट वी वुड से दिस इज द आंसर। बचपन में हम डिवाइड इस तरह से करते थे, रिमाइंडर तक निकालते थे। उसके बाद जब हम थोड़े बड़े हुए तो डिवीजन में हमने रिमाइंडर निकालना छोड़ दिया, डेसिमल डालना शुरू कर दिया, तो रिमाइंडर खत्म होने लगे या फिर एक लूप बनने लगा, है ना, रिमाइंडर्स का। तो हमने उसको डेसिमल में एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। नाउ अंडर दिस सेगमेंट वी आर नेवर गोइंग टू पुट डेसिमल इन आवर क्वोशिएंट, नेवर। हम हमेशा रिमाइंडर पे रुक जाएंगे। हमेशा हमारे लिए क्वोशिएंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, हमेशा। तो जैसे हमें डिवाइड करना था 576/4, तो हम काटना शुरू करते थे और हम फाइनली कहते थे हमारा आंसर 144 है, जबकि करेक्ट स्टेटमेंट है कि हमारा कोशेंट 144 है। तो कोशेंट हैज ऑलवेज बीन मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वेरी इंपॉर्टेंटली रिमाइंडर बिकम्स द हीरो ऑफ द पिक्चर। अभी हम सारी की सारी बात रिमाइंडर की करेंगे, कोशेंट के ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे। ओके, सो इट्स लाइक हमेशा साइड रोल करने वाला नवाजुद्दीन को अचानक एक दिन वासेपुर मिल जाती है और वो लीड बन जाता है, समथिंग लाइक दैट, you know। So oh, sorry, this never happens। Okay, so एक चीज आपको समझने की जरूरत है, वो ये है कि हमें हमेशा मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन जो है, ओके, इट इज अ शॉर्टकट टू एडिशन। फाइन, 7 into 9 करना है तो इट इज एज गुड एज 7 को 9 बारी ऐड किया या 9 को 7 टाइम्स ऐड किया। तो उसका एक शॉर्टकट बनाया गया, हमें कुछ टेबल्स याद करने को दिया गया कि आपको एक्चुअली इतनी बार ऐड ना करना पड़े। ये हमको सूनर और लेटर खुद ही समझ में आ गया या किसी ने बता दिया। लेकिन एक चीज जो अक्सर छुप जाती है, गायब हो जाती है और गैप बन जाती है, वो ये है कि डिवीजन जो होता है इसी तरह से इट इज अ शॉर्टकट टू सब्ट्रैक्शन एक्चुअली। देखिए फाइनली तो सब्ट्रैक्ट ही हुआ ना। तो डिवीजन को आपने देखा कि ये क्वोशिएंट है, ये डिविडेंड है, फलाना है, ढिमाका है। हम अगर इसको इस तरह से देखें, वी वांटेड टू चेक कि 100 में से 7 7 कितनी बार माइनस किया जा सकता है, तो हमें ये डिवीजन बताता है कि 14 टाइम्स माइनस किया जा सकता है। ओके, 14 टाइम्स माइनस किया जा सकता है, उसके बाद सिर्फ 2 बच जाएगा और आप 7 नहीं निकाल पाएंगे। तो इवेंचुअली तो सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है ना। अब देखिए इस डिवीजन को कितनी तरह से देखा जा सकता है। मान लीजिए देयर इज a reservoir of a group of 100 marbles और आपको 7 के पैकेट्स बनाने। तो ये डिवीजन आपको ये बताता है कि आप 14 पैकेट्स बना पाएंगे, उसके बाद 2 मार्बल्स रह जाएंगे। सो आइदर यू कैन से दैट 2 एक्स्ट्रा, और अगर आप इसी डिवीजन को दोबारा से लिखें जैसा कि हमें बचपन में सिखाया नहीं है, हमें तो यही बताया था कि रिमाइंडर आपका 0 1 2 3 4 टाइप आना चाहिए। लेकिन अगर हम पॉलिटिकली करेक्ट रहते हुए अगर डिवीजन को ऐसे करें
हमारा रिमाइंडर की जगह -5 आएगा। एक्चुअली दिस इज नॉट फॉर्मल, दिस इज नॉट प्रेजेंटेबल, यू नेवर गिव योर रिमाइंडर एज अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। लेकिन लाइक अंडर कवर एजेंट ये काम करता है बराबर, बिल्कुल पॉजिटिव रिमाइंडर जैसा ही। नाउ दिस डिवीजन इज टेलिंग यू दैट यू आर शॉर्ट ऑफ 5 marbles to make the 15th packet. You are short of 5 marbles to make the 15th packet. Right? So when you are dividing by 7, a positive remainder of 2 works same as the negative remainder of 5। क्योंकि इत्तेफाक से हमने 7 डिवाइजर लिया है, तो इस बात को आप ऐसे भी समझिए, बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस बात का। तो वीक में देयर आर 7 days, राइट? सो लेट्स से दिस इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, ऑल राइट। नाउ अब सपोज वी आर स्टैंडिंग, आज मंडे पे हम खड़े हुए हैं, तो पॉजिटिव रिमाइंडर ऑफ 2 मीन्स 1 2, सो वी अराइव ऑन वेडनेसडे। अगर हम -5 जाए, -2, -3, -4, -5, देन ऑल्सो वी लैंड ऑन वेंसडे। तो हुआ ना सेम चीज, +2 जाओ या एंटी क्लॉकवाइज या उल्टा 5 जाओ, एक ही बात। Similarly, when you divide by 12, a positive remainder of 4 is same as negative remainder of 8। यानी कि आज से 4 महीने बाद जो मंथ होगा, वही आज से 8 महीने पहले था। 4 महीने बाद कौन सा मंथ होगा? कयामत का मंथ होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। हाँ, तो अभी तो आज अगस्त आ गया, कल ये क्लास लेनी चाहिए थी, तो मैं कहता अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सो नवंबर, सो आज से 8 महीने पहले भी नवंबर होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। देखिए, नेगेटिव रिमाइंडर एक लग्जरी कॉन्सेप्ट है। व्हाट डू आई, व्हेन डू आई कॉल अ कॉन्सेप्ट अ लग्जरी कॉन्सेप्ट? जबकि वो कॉन्सेप्ट पढ़े बिना भी काम चले। लेकिन हम यहाँ काम चलाने थोड़ी बैठे हैं, हम यहाँ पर एज लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अगर नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पता है, तो कई बार आपको एक बूस्ट प्रोवाइड करता है, आपके काम में शॉर्टकट काइंड ऑफ एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। सो let me ask you this way, can I say that when the divisor is say 17, then then a positive remainder of 10 will be same as negative remainder of 7। चलेगा? When the divisor is 90, a positive remainder of 67 will be same as a negative remainder of 23। Okay, so the concept of negative remainder is okay। इतना ही जानना है नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में। तो अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पॉजिटिव रिमाइंडर ऑफ 8 इज सेम एज अ नेगेटिव रिमाइंडर ऑफ 2। अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पॉजिटिव रिमाइंडर ऑफ 4 इज सेम एज नेगेटिव रिमाइंडर ऑफ 1 एंड वाइस वर्सा। ओके, ओके, सो द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ रिमाइंडर, आज इतना ही करेंगे। तो हमने 100 को डिवाइड किया, चलो इस बार 9 से डिवाइड करते हैं, तो आपको मालूम है कि 1 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर, रिमाइंडर का रूट वर्ड होता है REM, रिमेनिंग, रिमेन। So remaining, extra. Can I say this one was extra? If you subtract this one from the dividend, the resulting number will be divisible by divisor always। Yes, देखिए वही बन गया जो 9 की टेबल में था। इसी तरह से पिछली बार
जो 2 रिमाइंडर आया था, अगर आप उसको डिविडेंड में से माइनस कर दें तो वही आएगा जो 7 के टेबल में है, 98, है ना. इट वर्क्स विद द नेगेटिव रिमाइंडर एज वेल. इफ यू सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम द डिविडेंड, so if you subtract -5 from 100, you will get 105, which is absolutely this number which comes in the table of 7. तो हमेशा जब आप एक नंबर को जब रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे डिविडेंड में से, तो हमेशा हमेशा वो नंबर डिवाइड होने लगेगा, रिजल्टेंट जो है वो डिवाइड होने लगेगा. ऑन दिस बेसिस मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि द लार्जेस्ट 4-digit number divisible by 17 is direct application of what I asked. करिए जरा प्लीज. So I hope you all are doing the right thing. So देखिए, आप वन ऑफ द टू थिंग्स कर सकते थे. या तो द लार्जेस्ट 4-digit नंबर दैट यू नो, 9999, इसको आप 17 से डिवाइड करते हैं. आप स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर को भी एक ही बात है डिवाइड कर सकते थे 17 से. दोनों केस में आपको सेम आंसर मिलेगा, रिमाइंडर अलग अलग मिलेगा, बट रिमाइंडर इज नॉट योर आंसर हियर. ओके. हाँ, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ही चाहिए था क्योंकि मुझे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए. तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच आई नो और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच आई नो, दोनों में से किसी एक से डील कर लो जो आपको आसान दिख रहा हो, जिससे आपको लगता है कि सही रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन आसान है, कुछ भी कर लो. तो दोनों ही केस में आपको फाइनल नंबर वही मिलेगा जो आना चाहिए. तो आपको ऐसा पता चला कि 9999, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट यू न्यू, दैट आई न्यू, वो तो डिवाइड नहीं हो रहा है 17 से, वो तो डिवाइड नहीं हो रहा है. तो 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 3 माइनस कर लो. सो आंसर विल बी 9996. और अगर आप 10,000 लेते हो तो 4 आता, तो 4 माइनस करने पर द आंसर इज 9996 अगेन. द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 17 इज 9996. अच्छा, इसी में मैं पूछूं कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9996, तो अब क्या करते. आसान तो सबसे ये है कि सॉरी, डिविजिबल बाय 17, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. तो आसान तो ये है कि आपको 9996 पता चल गया, इसी में 17 ऐड कर दो. लेकिन अगर 9996 नहीं पता होता, आप फ्रेश कर रहे होते स्टार्ट, तो 10,000 को या 9999 को आप 17 से डिवाइड करते हो और आपको 4 रिमाइंडर आता. तो या तो 4 माइनस करो या फिर इस 4 को 17 बनाओ. क्या माइनस, क्या ऐड करो, 13 ऐड करो, क्योंकि रिमाइंडर 17 आना का मतलब रिमाइंडर 0 आने के बराबर है. देखिए, रिमाइंडर कभी डिविडेंड के बराबर तो होता नहीं है, लेकिन अगर हम जुगाड़ से बना दें तो दैट मीन्स कि वो डिविजिबल हो जाएगा. तो या तो आप 4 सब्ट्रैक्ट करिए, जो कि अलाउड नहीं है, हमें तो ऐड करना है, तो 13 ऐड करिए. या फिर इसी चीज को अगर आप ऐसे देखते कि रिमाइंडर 4 की जगह आप -13 करते, तो भी आपको दिखने लगता कि इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 4 यू कुड आल्सो सब्ट्रैक्ट -13, एंड हेंस द नंबर वुड बी 10013. राइट. सो आपको दोनों एस्पेक्ट पता होने चाहिए. व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर सो दैट इट इज डिविजिबल, व्हाट शुड बी एडेड टू अ नंबर दैट इट इज डिविजिबल. ऑलराइट, चलिए ठीक है. सो ऑन दिस नोट आई थिंक आई एम गोइंग टू एंड इट हेयर, क्योंकि इसका नियर एंड मुझे कोई दिख नहीं रहा है. अगर मैंने कुछ भी और शुरू किया तो खूब सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट आ जाएगा, 15-20 मिनट और लग जाएंगे, और आप में से कुछ लोगों की क्लास भी है कहीं और. सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव. सो होप यू एंजॉयड, होप यू लर्न, एंड आई विल बी बैक टुमारो. और कल की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, सो माइंड मेकअप करके आइएगा. टुमारो वी विल स्टार्ट एट 6:30, so that even if the class extends a little longer,
So we end at the right time. So that would be all from my side, guys. Thank you so very much for attending. We'll see you again. Take care of yourself. Bye bye.